द मैसेज मूवी है, ठीक है, इसकी बहुत रिक्वेस्ट आती है, इससे हमको और जानने को भी मिलेगा है, क्योंकि इसमें अल्लाह के रसूल है, शायद उनके बारे में है ये, है उन्हीं की शायद जिंदगी के बारे में द मैसेज लिखा हुआ है। तो देखते वीडियो। अरब ये स्टार्टिंग से है या ये जो मदीना गए थे वहां से स्टार्ट है? ये थोड़ा है, ये देखना थोड़ा देख के पता लगा। ये 40 साल के जब हुए थे उसके बाद से जब वही आनी स्टार्ट हुई थी। ये कौन है? अरे पूरा पहले भी नहीं हुई ना ये। लोकेशन तो अच्छी है, रियल लग रहा है। पोस्टर लगा रखे पीछे महल के। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मोहम्मद रसूलुल्लाह की जानिब से शहनशाह बाज़ंतीन हर कुल के नाम सलामती हो उस पर जिसने राह रास्त इख्तियार की। मैं आपको हक की दावत देता हूँ। ये जब दावत के लिए अल्लाह ने मुझे तमाम दुनिया की तरफ रसूल किया है। अपनी नजात के लिए इस्लाम कबूल कर लीजिए। ये अरब के एक नए नबी की बात कर रहा है, यूहन्ना की तरह, जैसे वो शाह हिरर के पास बयाबानों से निजात का पैगाम लाया था। हजरत उमर सीरीज में था ये ऐसा ही सीन एक, है ना? पहले मतलब कैसे इजिप्ट। बनाम मकुकस वाली सिकंदरिया। किसरा शहनशाह फारिस, मैं फारिस। आपको अल्लाह की तरफ बुलाता हूं। आपकी निजात सिर्फ इस्लाम में है, कबूल कर लें इस्लाम। तुम सिरवाहे बियाबानों से निकलकर हमको ये बताने आए हो कि हमें किसके आगे झुकना चाहिए? मोहम्मद खुदा का रसूल, उसे ये मनसब किसने अता किया? मोहम्मद को अल्लाह ने इंसानों के लिए रहमत बनाया है। जियो इंतहाई नेकनियती और खुलूस दिल से फिल्म दी मैसेज अपने नाजरीन की खिदमत में पेश कर रहा है। हमारे पेश नजर हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान भी है जो आपने हज्जतुल विदा के मौके पर इरशाद फरमाया कि लोगों, इस पैगाम हक को जो तुम तक पहुंच चुका है उन तक पहुंचा दो जिन तक नहीं पहुंचा। हम हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसी इरशाद मुबारक पर अमल करते हुए
آپ کی خدمت میں اس فلم کے وسیلے سے حضور کا یہ پیغام عظیم پیش کر رہے ہیں۔ دنیا اسلام کے ممتاز علماء اور مورخین، عالم اسلام کی قدیم ترین یونیورسٹی جامعہ الازہر اور لبنان کی اعلیٰ شیعت کانگریس نے اس فلم کے مسودے کی تاریخی سچائی اور درستگی کی تصدیق کی ہے۔ یہ فلم بنانے والوں نے اس اسلامی روایت پر ایمان رکھتے ہوئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دکھایا جا سکتا، حضرت کے کردار کو شخصی طور پر اس فلم میں نہیں دکھایا۔ ملاحظہ کیجئے فلم دی میسج اردو زبان میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 600 برس بعد جب یورپ انتہائی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا اور تمام قدیم تہذیبیں دم توڑ رہی تھیں، مکے میں محمد رسول اللہ کی ولادت ہوئی۔ مکہ اس وقت ایک بڑا تجارتی شہر تھا جس پر کچھ مقامی تاجروں کی اجارہ داری تھی۔ مکے کی خوشحالی اور دولت مندی کا باعث اس کی ایک امتیازی خصوصیت تھی، مکہ بتوں کا مسکن تھا۔ سالانہ میلے کے موقع پر عرب کے پجاری اور کاہن یہاں جمع ہوتے اور اپنے اپنے بت کعبے کی تحویل میں دے دیتے۔ کعبہ اب ہوئی ہے سٹارٹ۔ بلی دے رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس کی بنیاد توحید پر رکھی تھی، بالکل وہی کعبہ شرک کا گڑھ بن چکا تھا، جہاں 360 بت 360 خدا تھے۔ مکہ ہر دن کے لیے 610 ایک۔ عیسوی میں 5 دن کم پڑ گئے، شاید 36 ہو گئی۔ آج کا حساب کر لیو میاں؟ ابھی نہیں، لیکن اس برس خدا ہمارے لیے سونا بن گئے۔ کیا بات ہے، ایک طرف خدا دوسری طرف منافع اور بیچ میں تم۔ کچھ اور خداؤں کو کعبے میں رکھوا دوں۔ او شام سے قافلہ، پھر تو پیاسے بھی ہوں گے۔ 570 زمانہ جہالت۔ 5 آدمی اور لگا دو۔ ان کے لیے کتنی بھیڑیں کٹوا دوں؟ 70۔ 100 ہونے چاہیے، مکہ مہمان نوازی کا بھرم رکھتا ہے۔ جہالت تھی نا۔ اور سرداروں کے لیے 10 بھیڑیں الگ سے۔ لڑکیوں کو بھی مار رہے تھے پیدا ہونے سے پہلے، بلی چڑھ رہی ویسا ہو رہا ہے۔ پانی اور روٹی ہی ملتا ہے حکم کے گھر صرف شاعر کو، جس کی وجہ سے شیر گلے میں گھٹ کے مر جاتے ہیں۔ اور بخدا روٹی تو پانی سے بھی پتلی ہوتی ہے۔ اوہ ہٹو، بڑے ہٹو، جگہ دو، گیتوں کے متوالوں، ابو سفیان کو راستہ دو، وہ کچھ سننا چاہتے ہیں، مال بھی ملے گا، علم و فن کے سرپرست ہیں۔ جب شاعر ابو سفیان کے گھر جاتے ہیں لطف ملتا ہے، پیار پاتے ہیں، خوب پیتے ہیں، خوب کھاتے ہیں، نور و نغمہ کی بات چلتی ہے، محفل عیش گرم ہوتی ہے جب شاعر ابو سفیان کے گھر جاتے ہیں۔ چین کا بہترین ریشمی کپڑا بدن سے چھو جائے تو روم روم جھوم اٹھے، دیکھو تو آنکھوں میں سرور امڈ آئے۔
ठीक 7 गज 20 दीनार। अबू सुफियान की भी ये वही अबू सुफियान। 15। हाँ, बाद में जो इस्लाम कबूल कर लेंगे। बता देगा पहले कैसा था, लोग मार्केट वगैरह में। हो बात हो, देखो भाई काबे के बुत भी तो जरूरतमंद है। कैसे एक्टिंग कर रहा है सामने। वो कौन है? वो वहां जिससे मेरे रूह में झांक लिया है। मुझे यहां से फौरन ले चलो। एक और बुत रख रहे हैं। आखिर मोहम्मद यहाँ आता ही क्यों है? तुम उसे रोकते क्यों नहीं? भतीजा है तुम्हारा। ठीक हो जाएगा। क्या 40 बरस का हो चुका है वो। ये दीवानगी है। इतनी अमीर बीवी का साथ है, मक्का की हर आसाइश खरीद सकता है वो, लेकिन उसे तो गार में अब वो 40 के हो गए, अब वही स्टार्ट होएगी, है ना, फरिश्ता दीवानगी जो है आएंगे। कि एक इंसान खतरा मोल ले, उज़ा का जो सेहत देती है। मना हमारी खुशहाली का जामन है। लाद जो हमारे खानदानों और कबीलों का निगरान है। और हुबल हमारी तजारत का रखवाला, किस्मत बनाने वाला। खुदाओं का इस तरह खुलम खुला इनकार खतरनाक है। मेरा जवाज है, बगावत है, कुफ्र है। हाँ, मुझे डर है कि मोहम्मद खुद को मुसीबत में न डाल ले। सालाना मेला खत्म होने पर मैं हमेशा उदास हो जाता हूं, जाने अगले बरस में हो या ना हो। अबू तालिब, अबू तालिब, मेरा दाम तो लो जैद। क्या मोहम्मद पहाड़ी से लौटे? वो 3 दिन से पहाड़ी पर है। नहीं, हमने उसे नहीं देखा। खतीजा का ख्याल था कि वो वापसी में आपसे मिलते हुए आएंगे। तो फिर वो ऊपर ही है। 3 दिन से। उसका ये पहाड़ पर रहना मुझे फिक्रमंद कर दिया था, क्योंकि मैं इसके माने नहीं जानता। इंसान बुलंदी से दुनिया को बखूबी समझ सकता है। वाव, एक कदम पीछे हटके देखना कि चल क्या रहा है। उसी में गुम हो जाते हैं ना लोग, वो भटक जाते हैं। थोड़ा देखो पीछे से कि समाज में क्या चल रहा है। ऐ मोहम्मद, पढ़ो अपने रब के नाम से, जिसने इंसान को खून की नाजुक बूंद से बनाया, जिसने इंसान को वो सिखाया जो वो जानता नहीं था। पढ़ो। वो अभी तक कंबल में लरज़ रहे हैं, लेकिन होश में आ चुके हैं। जैद, मेरे भतीजे के साथ पहाड़ पर क्या हुआ? वो गार में तन्हा थे कि अचानक एक फरिश्ता जाहिर हुआ। उसने कहा, पढ़। मोहम्मद बोले,
मैं पढ़ नहीं सकता। फरिश्ते ने फिर कहा, पढ़ 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 अपने रब के नाम से, जिसने इंसान को खून की नाजुक बूंद से बनाया, जिसने इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। पढ़। क्या खबर वो जिब्राइल हो या फिर महज एक ख्वाब? लेकिन मोहम्मद जब पहाड़ी से लौट रहे थे, उन्होंने जिब्राइल को फिर देखा, जमीन और आसमान के बीच एक आदमी की सूरत में। वो जहां देखते थे हर तरफ उन्हें वही नजर आते थे। तब उसने फिर कहा, मैं जिब्राइल हूं और आप मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। उसने इस बारे में किस किस को बताया? अपनी बीवी और अली और अपने दोस्त अबू बकर को। और तुम्हें? मैं उनका मुंह बोला बेटा हूं। ओ, ये वो है। हर किसी से ये बात मत करना और उसे बता दो कि जिस तरह उसके चचा ने बचपन में उसकी हिफाजत की थी, अब भी करेगा। मैंने सुना है कि मूसा से खुदा ने जलती हुई झाड़ी में से कलाम किया था। अगर तुमने अपने भतीजे को नहीं रोका तो हम रोकेंगे। वो इस शहर में फसाद डाल रहा है, घर से घर जुदा कर रहा है, नस्लों में फूट डाल रहा है, औलादें बागी हो गई हैं। नौजवान उसकी बातें सुनते हैं, उसे पसंद करते हैं। हम अरब हैं, बड़ों को हुक्म मानते हैं, बच्चे हम पर हुक्म नहीं चला सकते। हम कैसे मान लें कि एक आदमी जो कल तक हमारी तरह बाजारों में फिरता था, आज खुदा का पैगंबर बन गया है? कहता है गली सड़ी हड्डियां फिर से जी उठेंगी। कहता है सबको ये था ना कि यहूदियों में आने वाला है आखिरी जो पैगंबर है, वो इनके लिए सबके लिए सरप्राइज वाली बात। हमसे नाराज होकर किसी दूसरे शहर में मेहरबान ना हो जाएं। उसे कहो हम देंगे उसे इख्तियारात, मर्तबा, काबे की चाबियां और दौलत जितनी वो चाहे। उसे कहो जो चाहेगा देंगे। मोहम्मद, अपने आप पर तरस खाओ और मुझ पर भी। इन बूढ़ी हड्डियों पर उतना ही बोझ डालो जितना ये बर्दाश्त कर सकें। मैंने तुम्हें गोदों खिलाया है, तकलीफ में कैसे देख सकता हूं तुम्हें? मान जाओ वरना वो तुम्हें बहुत सताएंगे। अब नहीं रुक सकते, अब ऊपर से ऑर्डर आ चुका है भाई, अब कैसे रुक सकते हैं? उसने मुझसे कहा अगर वो मेरे दाएं हाथ पर सूरज रख दें और बाएं हाथ पर चांद, तब भी उस फर्ज से पीछे नहीं हटूंगा। मैं बोला ना, अल्लाह ने मुझे सौंपा। बिल्कुल। मेरी मौत के बाद जो जी चाहे करना, मगर जब तक जिंदा हूं मेरा हुक्म मानना होगा। क्यों सता रहे हो अपने बाप को? अगर मैं हर वक्त नशे में चूर रहता और हर रात जुआ खेलता तो तुम्हारे नजदीक ये बाइस फख्र होता। जो भी होता मेरा भाई तो लगता। तुम सब मेरी औलाद हो। मैंने तुम्हें बहुत कुछ दिया, मगर लगता है थोड़ा। ये हज़रत उमर तो नहीं, मोहम्मद के पास बहुत नहीं, अभी नहीं। उनके पास सारी दुनिया के लिए बाद में थोड़ा तो बाद में दिखाएंगे, वो तो बच्चे थे उस समय शायद। नहीं, वो 40 के हो गए शायद, अब दिखा सकते हैं।
ये वलीद या मैं नहीं, तेरा बाप है जिसे तू अजियत दे रहा है। ठहरो हुज़ैफा, रुक जाओ। वो कैसे कह सकते हैं सब कुछ नया है, कितना जबकि real कुछ लग रहा नया है, नहीं। सब कुछ बहुत हमारे लिए तो नया है। अल्लाह का ये पैगाम पहले भी नाजिल हुआ, नूह पर, मूसा पर, ईसा पर, लेकिन लोगों ने इसे बदल दिया, तर्क कर दिया, भुला दिया। अब रसूलुल्लाह पर यह पैगाम फिर नाजिल हुआ, इसलिए फिर नया है। कौन हो सकता है? जाफर होगा। ये क्या लाए हो? अल्लाह की वही। फर्स्ट वही। जब सूरज लपेट दिया जाए, जब तारे झड़ पड़े, जब पहाड़ चलाए जाएं, जब 10 माह की हामला ऊँटनियां छूटी फिरें और जब वहशी दरिंदे हाके जाएं, जब समंदर उबल पड़े, जब जाने जिस्मों से जोड़ दी जाएं और जब जिंदा दबाई जाने वाली बच्ची से पूछा जाए किस खता पर मारी गई, जब नामाए अमाल खोल दिए जाएं और जब आसमान खींच लिया जाए, तब हर जान जान लेगी कि वो क्या लाई है। क्या तुम थे वहां जाफर जब इस वही का नुज़ूल हुआ? सुबह हो रही है। मतलब सब कुछ कितना अच्छा लग रहा था, मतलब सब कुछ रियल लग रहा था, और जो भी सारे लोग किरदार निभा रहे थे अपना, बहुत अच्छे से निभा रहे थे। और बहुत पुराना कल्चर, मतलब ऐसा लगता है वो हमको अच्छा लग रहा है, वो टाइम है ना, हम बहुत अच्छा लग रहा है। आज के टाइम में और क्या लग रहा है, कुछ नहीं है यार, वो पुराना टाइम ही बहुत अच्छा था। हम मतलब इतने टाइम से हमने, क्योंकि सीरीज हम देख रहे हैं ना, वो हमको अब वो टाइम अच्छा लगने लग गया। वो अरब का जो था वो सिस्टम वगैरह है, आज के टाइम में सब नौटंकी दिखावा लगता है मेरे को। नहीं अब जो है ना वो स्पीड आ गई, अब ज्यादा है ना, अब टाइम नहीं है किसी में, आराम से बैठे हैं सब, आज के टाइम में सब अपना आग जला फोन में लगे पड़े। आज के टाइम में हर घर में 10 फोन, 10 लोग। तो बहुत अच्छा लगा है ना, क्योंकि एक होती है डायरेक्शन, होती है लाइटिंग, होती है ना दिखाने की। जो असहाबे कैफ है ना, उसकी मेरे को लाइटिंग थोड़ी ऑफ लगती है, क्योंकि हर जगह सेम लाइटिंग आ रही होती है उसमें। अगर कोई जैसे हमारा, आप हमको देख रहे हो, हमारे भी हर तरफ लाइट आ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक साइड अगर यहाँ लाइट आ रही है कहीं से, तो यहाँ पे अंधेरा दिखना चाहिए थोड़ा सा, है ना। तो ये थोड़ी लाइटिंग वगैरह भी मेरे को दिखते है, और थोड़ा उस टाइप का भी, लेकिन इसमें बढ़िया थी, है। तो अब आप अभी आगे और तो आगे किरदार देखते, क्योंकि हमने इतना देख लिया, हमको अब समझ में आ रहा है कैसा क्या होने वाला है। लेकिन फिर भी रसूलुल्लाह की है इतनी, वो हम भी उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं, शायद आपसे भी ज्यादा करते हैं, क्योंकि आप से ज्यादा तो नहीं कर पाए। तो ये वाइफ बीच में मेरी बोल रही थी, जब वहां पे भूत दिखाए जा रहे थे, कि आज भी कहीं पे ऐसे भूत होते हैं क्या, तो आप बताना कहीं कमेंट करके, भूत कहाँ पे है। हाँ, मैं सोच रही थी आज भी कभी हो, या हमने कभी ऐसे अभी तक किसी के मुंह से सुना नहीं है। भूत क्या होता है आपको पता नहीं? मूर्तियां ही तो होती है, नहीं देखी कभी मूर्तियां? अरे ऐसी वाली, अपनी तो आप थोड़ी बात कर रहे हैं। ऐसे वाली और उसके वाली का क्या मतलब है? ये अलग है, हमारे अलग है। ये क्या बात है? ये देख रहे हो, उनके अलग हमारी, ये तो हमारी में तो पहले भी थे और आज भी है, उनकी मतलब पहले देखी है मैंने, और रियल में नहीं देखी, वो चीज कह रही हूँ। वो यही, वो समझा क्या रहे, वो वही तो कहे कि वो एक है, इस चक्करों में मत पड़ो। और क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। तो अब आगे देखते क्या होता है, और आप कमेंट करके बताना आगे देख के और समझ भूत कहानी और आपने देखे कि नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, बाय।